everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna start with your chemistry lecture. As I told you that we had discussed about 133 lecture, and now we will discuss about 133 lecture, and 132 we had covered up in the last class as before of hybridization of chemistry that we are discussing here for the class 11th here, as I told you before also. And now we will start discussing about the hybridization, where we are discussing about the silent features of hybridization. Then we'll discuss the examples of having SP hybridization. As of we'll discuss hybridization, and then we will discuss hybrid orbital as well as hybridization, what hybridization is all about. Then we'll discuss the silent features of hybridization, importance of hybridization. Then we'll discuss the types of hybridization, where we'll discussing the examples of SP hybridization. There's a we will discuss that SP hybridization, SP2 hybridization, as well as SP3 hybridization. With respect to that, we will discuss the examples of those SP hybridization, SP2 hybridization, SP3 hybridization, as well as in that we'll discuss with the examples and other examples of SP3, SP2 and SP hybridization. We will discuss there with the figure, of course, and all these will discuss here. And of course the formation of Bcl3 hybridization, of that table, of course, that will discuss formation of SF6 SP3D2 hybridization, that we also discuss here. So in all total, we'll start with the session that we have hybridization. What is all about hybridization is hybridization in order to explain the characteristics of geometrical shape of polyatomic molecules like CH4, NH3 and H2O etc. Basically अगर हम बात करते हैं in order to explain the characteristics of geometrical shapes of polyatomic molecule, अगर हम polyatomic molecule की बात करते हैं तो उसके characteristic geometrical characteristics को देखते हैं. शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें मीथेन आता है, आपका NH3 अमोनिया आता है, और उसके साथ साथ आपका H2O वाटर आता है. तो ये तीन आपके जो है जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इनमें ज्योमेट्रिकल फीचर्स जो उनके शेप्स हैं उसको हम चेक करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी चेक करते हैं बाय इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन हियर, where the Pauling introduced the concept of hybridization. According to him, the atomic orbital combine to form new set of equivalent orbital known as hybrid orbital. तो पॉलिंग जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का. जिन उनके हिसाब से, पॉलिंग के हिसाब से, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो कंबाइन करते हैं न्यू सेट्स बनाने के लिए, जो कि इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं. उसी को ही हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं. जो इक्विवेलेंट सेम इक्विवेलेंट आपके ऑर्बिटल्स बनाते हैं उन्हीं को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बोलते हैं. दैट सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. Unlike pure orbitals, the hybrid orbitals are used to form the form formation. बेसिकली अगर हम प्योर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो प्योर ऑर्बिटल में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं. बॉन्ड फॉर्मेशन वहाँ पे टेक प्लेस करता है. दैट दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. इसी फिनोमेना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. किस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं? क्योंकि पॉलिंग ने ये बताया था, जब वो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वो बता रहे थे तो उन्होंने ये बताया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जब वो कंबाइन करते हैं न्यू सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल को, तब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं. बट वही जो आपके अनलाइक प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं यही बॉन्ड फॉर्मेशन बनाते हैं. और बॉन्ड फॉर्मेशन इसी फिनोमेना को, जो बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है अनलाइक प्योर ऑर्बिटल्स का, एज वेल एज इंक्लूडिंग द न्यू सेट्स ऑफ द इक्विवेलेंट ऑर्बिटल एज वेल, then these phenomena is known as hybridization. That is what you have to understood here with the definition of hybridization. Now moving on with the next, that which can be defined as the process of intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new sets of orbits of equivalent energy and shape. अगर हम बात करते हैं अगर हम ये डिफाइन करते हैं कि लाइक जो प्रोसेस होता है इंटरमिक्सिंग का, जो इंटरमिक्स होते हैं ऑर्बिटल्स, वो स्लाइटली एक दूसरे की एनर्जीज जो होती हैं वो थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट होती है. ठीक है, तो जैसे जैसे डिफरेंट एनर्जीज हैं, जब वो इंटरमिक्स्ड होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनर्जीज को, और उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिट में, वो इक्विवेलेंट एनर्जी या फिर इक्विवेलेंट शेप
में वो फिर उसी को गैदर भी करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम उसके बाद में बात करते हैं तो हम उसके एग्जांपल्स देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। फॉर एग्जांपल व्हेन 1 2s एंड 3 2s ऑर्बिटल, अगर हम 1 2s की बात करें, 1 आपकी 2s ऑर्बिटल है और आपकी जो 2 है, सॉरी 3 जो है वो आपकी 2p ऑर्बिटल्स है। दे आर द कार्बन हाइड्राइज, कार्बन हाइब्रिडाइज में यूज होता है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब आपका 1s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज होता है कार्बन में, तब वो आपका फॉर्मेशन करता है न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, जो कि 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करता है। Now here we will move on with the next one that we have here, the silent features of hybridization. What are the silent features of hybridization that you have to understood? And there are three basically silent features that we will discuss here. And the first, the main features of hybridization are as under. The first feature what they had told about the silent feature of hybridization is the number of hybrid orbitals is equals to the number of atomic orbitals that get hybridized. तो जितने भी नंबर ऑफ आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो आपके इक्वल किसके होंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो कि हाइब्रिडाइज हो रही हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल that has been going to be in a hybridized. That is the first silent feature of the hybridization here. Now moving on with the next one that we have here, the second one, that is the hybridized orbitals are always equivalent to the energy and shape. जो भी आपकी hybridized आपकी orbitals होंगी, वो hybridized orbital जो होंगी वो आपकी equivalent होंगी। किसके equivalent होंगी, energy के equivalent होंगी और उसके shape के equivalent होंगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्या आपके equal होगा। तो the hybridized orbitals are always equivalent in energy as well as in shape. The third silent feature that they had given is the hybrid orbitals are more effective. और जो hybrid orbitals होती हैं जो कि आपके एनर्जी और शेप के इक्वल होंगी, तो जो hybrid orbitals है वो आपके more effective भी होती हैं in forming the stable bond and in their pure atomic bond. तो basically जो pure atomic bond होता है वो आपका hybrid orbital से कम होता है, और hybrid orbital जो होते हैं आप कह सकते हो hybrid orbital जो है वो बहुत ही effective होते हैं forming stable forming your bond and with the pure atomic orbital here. Okay, so as a conclusion of silent features of hybridization, as you can see that there are the three features of silent features of hybridization. The first is the number of hybrid orbital is equals to the number of the atomic orbital that get hybridized. Second one is the hybridized orbital are always equivalent in energies and shape. And the third one is the hybrid orbitals are more effective in forming the stable bond the pure bond atomic orbital. As we will move further, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कॉम्बिनेशन दिखेंगे। जब हम sp3 sp और sp2 की बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, तो वहाँ पे आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड हो पता चलेगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज पाई बॉन्ड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, एंड कौन सा स्ट्रांग होता है कौन सा वीक होता है। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा बच्चों को ज़्यादा रहती है, तो वो चीज़ भी मैं क्लियर करूँगी जब मैं आपको sp हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊँगी। तो इसके हिसाब से जब मैं वो डिस्कस करूँगी तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से उसको समझना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको वो जो डाउट होगा सेशन का वो ऑब्वियस ही बातें क्लियर हो जाएगा। Now moving on with the next one that we'll discuss, the fourth silent feature of hybridization here is these hybrid orbitals are directed in the space and some preferred direction to have the minimum repulsion between the electron pair and thus a stable arrangement. ये इन्हीं hybrid orbitals की अगर हम बात करते हैं तो वो डायरेक्टेड होती हैं स्पेस में ही, ऑब्वियस सी बात है, और सेम प्रेफर्ड डायरेक्शन को भी प्रेफर करती हैं, हैविंग अ मिनिमम रिपल्जन। जितना कम रिपल्जन होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होंगे। तो दैट यू ऑल्सो नो, एंड अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर रिपल्ड ईच अदर। तो इस वजह से रिपल्जन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो दे कैन सेपरेट, दे कैन नॉट बी एट वन particular molecule. Okay, so that's the reason these hybrid orbitals are directly in the space and some prefer directions to have a minimum repulsion between the electron pairs and thus a stable arrangement as well.
Therefore, the type of a hybridization indicates the geometry of a molecule. इसी वजह से अगर hybridization type of hybridization की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे वो indicate करता है उसी की geometry को ही, molecule की geometry को ही indicate करता है. So here we had discussed the four features of hybridization. Now we'll discuss the important conditions of hybridization. What are the important conditions that we have to face with reference to the hybridization? The important condition that you have to understand is the first condition is the orbital present in the valence shell of an atom are hybridized. जो भी orbital present होगा आपका valence shell में, वहाँ पे वो atom आपका है वो hybridized होगा. This is for sure. This is the first category that the orbital present in the valence shell of that atom are hybridized here. The second important condition is the orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy. तो जो orbitals होती हैं जो hybridization process में जा रही हैं वो almost आपके equal energies उनकी होंगी. जितने भी hybridization process में आपके orbitals होंगे सबकी आपकी equal energy होगी. This is mandatory. The third one is the promotion of electron is not essential condition prior to the hybridization. तो जो promotion हो रहा है electron का एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो ये ज़्यादा necessary नहीं है as compared to the hybridization. But the priority of hybridization is to complete the hybridization, but it is not important that the promotion of electron is not essential condition there. The fourth condition that we have, it is not necessary that only half-filled orbitals participate in the hybridization. In some cases, even filled orbitals of the valence shell take place in the hybridization. बेसिकली अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि आपका जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है वही पार्टिसिपेट करेगा, जो क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फर्म लगता है ऐसा कि जो हाफ फिल्ड होगा वही पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन पर ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर क्यों इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि सम केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ऑर्बिटल्स जो कि वैलेंस शेल आपके हैं, ठीक है, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हैं आपके, इवन वो फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल में है, बट फिर भी वो हाइब्रिडाइजेशन को टेक प्लेस करते हैं. इस वजह से ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हाफ फिल्ड ही आपका हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में काम करेगा, बट आपका जो फुल फिल्ड वाला वैलेंस शेल ऑर्बिटल भी है वो भी आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है. So here these were the four conditions, the important conditions of hybridization as I told you. And the first condition, you can see that the orbital present in the valence shell of the atom are hybridized. Second one is the orbital undergoing hybridization should have almost equal energies. The third one is promotion of electron is not essential condition prior to the hybridization. The fourth one is it is not necessary that only the half filled or orbitals participate in the hybridization. In some cases, even filled orbitals of valence shall take part in the hybridization. So here now we'll move with the types of hybridization that we have to understood the types of hybridization. So before that, types of hybridization क्या होता है? There are the various types of hybridization solving the S, P and D orbital. तो बेसिकली जितने भी हाइब्रिडाइजेशन हम यूज़ करेंगे, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे वो आपके एस, पी और डी ऑर्बिटल्स को सॉल्व करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर एज फॉलोज. तो डिफरेंट टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से हैं मैं वो आपको बता देती हूँ. पहला है आपका एस पी हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड है आपका SP2 हाइब्रिडाइजेशन और थर्ड है आपका SP3 हाइब्रिडाइजेशन. ये तीन हाइब्रिडाइजेशन है जहाँ पे एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर, एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर, एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर, या कह सकते हो आप एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और फिर डी ऑर्बिटल. इनका कॉम्बिनेशन के साथ हमारा तीन हाइब्रिडाइजेशन बनता है, जैसा कि एस पी हाइब्रिडाइजेशन है, सेकेंड इज योर SP2 हाइब्रिडाइजेशन एंड द थर्ड वन इज SP3 हाइब्रिडाइजेशन. अब इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं तो वी हैव अ फर्स्ट इज SP हाइब्रिडाइजेशन. SP हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज SP हाइब्रिडाइजेशन? दिस इज अ टाइप ऑफ अ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ 1s and 1p orbital resulting in the formation of two equivalent sp hybrid orbital. तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक आपका s हाइब्रिड आपका ऑर्बिटल रहता है और एक आपका p होता है. तो p कुछ इस तरह से होता है आपका, इस तरह से, ठीक है. तो S और P, तो ये आपका अगर S है, ये आपका P है, तो ये आपका SP हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ठीक है. तो इस तरह से वहाँ पे एक S और एक P ऑर्बिटल्स होते हैं, वो आपका फॉर्म करते हैं एक इक्विवेलेंट SP हाइब्रिड ऑर्बिटल. ओके, तो इसी को लेके हम आगे चलेंगे जिसकी वजह से हम SP हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं. नाउ विल मूव विद नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज.
So here you can see that the suitable orbital for the sp hybridization are s and pz. तो अगर हम suitable orbitals की बात करते हैं तो sp hybridization में आपका s है और pz आपका orbital sharing करता है, जैसा कि मैंने s बोला था और ये आपका बोला था next p वाला, तो वो pz orbital share करता है. If the hybrid orbital are to be lie along the z axis, each sp orbital has a 50% s character and 50% p character. अब हम बात करते हैं एक्सेस की. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है और एक जेड एक्सेस होता है. ठीक है, तो ये रिस्पेक्टिव जेड एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस होता है. तो इन्होंने बोला है अगर वो जेड एक्सेस पे लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ जेड एक्सेस, तो इस तरह से इस फीचर में वो लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 50% आपका 50% एस कैरेक्टर को शो करेगा और 50% आपका पी कैरेक्टर को भी शो करेगा. So suitable orbitals of the sp hybridization s and pz, if the hybrid orbitals are to be lie on the along the z axis, if they are lying along the z axis, then each of the sp hybrid orbital has a 50% of s character and the 50% of the p character as well. They will be showing here. Now moving on with the next one, that such a molecule in which the central atom in sp hybridized and linked directly to other central atoms possesses linear geometry. This type of a hybridization is also known as diagonal hybridization. इस ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे आपका सेंट्रल एटम जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होता है, जहाँ पे सेंट्रल एटम लिया जाता है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है एंड लिंक्ड डायरेक्टली, और वो लिंक्ड भी है डायरेक्टली दो या दो से ज़्यादा सेंट्रल एटम्स के जो कि लीनियर ज्योमेट्री बना रहे हैं. लीनियर ज्योमेट्री बेसिकली क्या होता है, जो एक लाइन में ज्योमेट्री बने जो कि एक्चुअली में मैं बात करती हूँ अगर, तो वो 180 डिग्री का एंगल बनाए तो उसे हम लीनियर ज्योमेट्री बोलते हैं. दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, और इसी टाइप की जो लीनियर ज्योमेट्री बना रही है उसको हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं. तो ये लाइन लीनियर वाला हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ेंगे. तो वो अभी जैसे ही हम मूव ऑन करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के आर्किटेक्चर के बारे में, तो आपको वो मैं चीज़ें दिखाऊंगी कि कैसे लीनियर बनाता है, कैसे आपका ट्राइगोनल प्लेनर बनाता है, कैसे आपका टेट्राहेड्रल बनाता है. तो वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे इसी क्लास में. सो बिफोर दैट आई विल हियर टू डिस्कस now the next point, that the two sp hybrid orbitals, that two sp hybrid point in the opposite direction always along the z-axis with projecting positive lobes and very small negative lobes, which provides more effective overlapping and resulting in the formation of the stronger bond. अब हम बात करते हैं दो sp हाइब्रिड पॉइंट्स की. तो जो दो sp हाइब्रिड पॉइंट्स बनेंगे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है along the z-axis with the projecting पॉजिटिव लोब, जहाँ पे वो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके पॉजिटिव लोब को जो कि ज़्यादा है, एंड वेरी स्मॉल बहुत छोटा ही आपका नेगेटिव लोब होगा. ओके, विच प्रोवाइड मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग, जो कि बहुत अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव ओवरलैपिंग शो करेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और तभी वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करता है और तभी वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एक्चुअली में बनाता है. ओके, so now moving on with the next one, that we have examples of having sp hybridization. अब हमने डिस्कस अभी तक की किया sp hybridization क्या होता है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पहले sp hybridization डिस्कस करें, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन है वहाँ पे s कैरेक्ट 1s होता है, 1p ऑर्बिटल होता है, दोनों फॉर्म करते हैं. उसके बाद वो sp हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं. sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ हमने ये देखा कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन है वो 50% अगर वो z एक्सिस के अलॉन्ग फॉर्म कर रहा है तो वो 50% s कैरेक्टर दिखाएगा, 50% p कैरेक्टर दिखाएगा. उसी के साथ साथ फिर हमने ये देखा कि जो सेंट्रल आइटम्स होते हैं वो आपके सेंट्रल आइटम्स बना रहे हैं जो कि आपका ज़्यादा पॉजिटिव लोब्स होता है, नेगेटिव लोब्स होता है, तो वो ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा. अब नाउ विल सी द एग्जांपल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन. अब कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि आपके मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं. तो sp हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BeCl2 है. BeCl2 की अगर हम बात करते हैं तो BeCl2 जो आपका एग्जांपल है वो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए है. और BeCl2 का द ग्राउंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B इज 1s2 2s2. तो अगर हम B की बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका 1s2 और 2s2 है. In the excited state of the 2s orbital is promoted to the vacant 2p orbital to the account for its divalency. और इसी वजह से जो 1s2 2s2 है जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो 2s इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट कर देता है वैकेंट 2p ऑर्बिटल में. इसी की वजह से हम इसे डाइवैलेंसी भी बोलते हैं. 1s and 1 2p orbitals get hybridized to form the 2sp hybrid orbitals. These two sp hybrid orbitals are oriented in the opposite direction, forming an angle of 180. Each of the sp hybridized orbital overlap with 2p orbital.
तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 1s2 और 2s2 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट उसके साथ साथ जब वो एक्साइटेड स्टेट में आता है तो वो आपका 2s इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको प्रोमोट कर देता है 2p इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में। उसके इसी वजह से उसे हम डायवैलेंसी भी बोलते हैं, जिसमें एक 2s और आपका एक 2p ऑर्बिटल भी जो है वो हाइब्रिडाइज्ड होता है और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। दीज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड अपोजिट डायरेक्शन, इसी वजह से ये दोनों जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं। ये ओरिएंटेशन इस तरह से बनता है इनका। दे आर फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री वो बनाते हैं और तभी इसी हमें कहते हैं लीनियर बनता है। 180 डिग्री बना रहे हैं, जिसे हमने डायवैलेंसी भी ऊपर बोली थी। ईच ऑफ द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप विद द 2p ऑर्बिटल, हर एक 2s ऑर्बिटल जो है आपका वो ओवरलैप करेगा 2p ऑर्बिटल से। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन, विद कंटिन्यू विद दिस ओनली। So here you can see that of that chlorine axial form of the PeCl sigma bond. अब sigma bond जैसा कि मैंने बताया था आपको, तो sigma bond हम देखेंगे यहाँ पे कैसे बनेगा। तो BeCl जो आपका sigma bond बना रहा है, वहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये आपका S bond है, ये आपका मतलब S कैरेक्टर शो कर रहा है, S ऑर्बिटल है, जिसमें आप यहाँ पे X एक्सिस देख सकते हो, Y एक्सिस देख सकते हो, Z एक्सिस देख सकते हो। यहाँ पे मैं आती हूँ P ऑर्बिटल के बारे में बात करने के लिए। तो ये आपका P ऑर्बिटल है, ये आपका X एक्सिस है, Y एक्सिस है और Z एक्सिस है। Z एक्सिस के अलॉन्ग आपका p ऑर्बिटल भी बना है और s ऑर्बिटल भी बना है। अब आते हैं BeCl2 के बारे में। तो Be यहाँ पे आपका आ गया, Cl2 आपके यहाँ पे आ गए। अब ये Z एक्सिस है, भी यहाँ पे BeCl2 हम देखेंगे, चेक करेंगे, पर एग्जाम्पल में बात कर रही हूँ। तो ये आपका P एक्सिस है, ये आपका S एक्सिस S ऑर्बिटल है, ये P ऑर्बिटल है, ये Z एक्सिस के अलॉन्ग बना है। ओके, ये 180 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब है कि ये लीनियर है। ओके, लीनियर है और ये आपका लीनियर है और BeSp हाइब्रिड्स बना रहा है। अब इसी का आर्किटेक्चर हम यहाँ पे देखेंगे BeCl2 मॉलिक्यूल का। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो आपका पूरा है ये p ऑर्बिटल है जो कि Cl है, फिर ये आपका जो है वो Be है और ये आपका जो है पूरा वो Cl है, तो BeCl2 बन गया। अब यहाँ पे जो ये कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे जो ये है ये आपका सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये Be है बीच में और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, तो ये BeCl2 हो रहा है। Cl में PZ बन रहा है, ये PZ एक्सेस को कर रहा है और ये Be है। तो ये इस तरह से आपका बना रहा है। जैसा कि मैंने टाइप्स ऑफ आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ आपके जो हाइब्रिडाइजेशन है, पहला SP है, सेकेंड आपका SP2 है और फिर थर्ड आपका SP3 है। तो ये तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप जो SP हाइब्रिडाइजेशन है वो डिस्कस किया है। यहाँ पे पहला जो आर्किटेक्चर्स आप ये देख रहे हैं, ये आपका फॉर्मेशन ऑफ SP हाइब्रिड्स ऑफ S एंड P ऑर्बिटल्स का देख रहे हैं। सेकेंड वाला जो आप देख रहे हैं, ये आपका फॉर्मेशन ऑफ लीनियर BeCl2 मॉलिक्यूल है जो कि आपका लीनियर है। तो ये आपका जो एंगल बना रहा है वो आपका 180 डिग्री बना रहा है, तो ये पूरा 180 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, ये BeCl2 मॉलिक्यूल है। नाउ मूविंग ऑन विद द SP2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो SP2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हम किस तरह से उसे सॉल्व करते हैं, दैट वी विल डिस्कस्ड हियर। SP हाइब्रिडाइजेशन में आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि SP हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो आपका लीनियर होता है, पहली चीज़। उसके बाद वो 180 डिग्री बनाता है। अभी तक इतनी चीज़ें हमें पता चल गई है SP हाइब्रिडाइजेशन की। अब यही सारी चीज़ें, किस टाइप का आर्किटेक्चर बना रहा है, किस टाइप के एंगल बनाता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड वाला है SP2 हाइब्रिडाइजेशन। SP2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते बेटा, तो इन दिस हाइब्रिडाइजेशन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन साउंड, वन S and 2P कैरेक्टर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ 3 इक्विवेलेंट SP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अगर हम बात करते हैं SP2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन, हर एक हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे SP2 में, वहाँ पे एक S होगा आपका और 2P ऑर्बिटल्स होंगे जो कि आपका 3 इक्विवेलेंट SP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन Bcl3 molecule, the ground state electronic configuration of the central boron atom is 1s2 2s2 2p1। अगर हम बात करते हैं Bcl3 मॉलिक्यूल के बारे में, तो ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेंट्रल बोरॉन एटम की, वो आपकी है 1s2 2s2 2p1।
उसके रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं, इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द 2s और इलेक्ट्रॉन is promoted the vacant 2p orbital as the result of boron has 3 unpaired electron। अगर हम बात करते हैं उनके एक्साइटेड स्टेट की, क्योंकि अपने जैसे देख सकते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स के बीच में होगा, जो कि इक्विवेलेंट आपके sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। उसके साथ साथ जो अगर हम बात करते हैं Bcl3 के बारे में, जो कि Bcl3 के अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, सेंट्रल एटम जो कि बोरॉन है उसका 1s2 2s2 2p1 है। एक्साइटेड स्टेट में जब वो जाता है तो वहाँ पे आपका 2s इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट कर दिया जाता है वैकेंट 2p ऑर्बिटल्स में। उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो बोरॉन होता है उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट sp2 hybridization. Now we will move and discuss with sp2 hybridization more about that. These three orbitals जो कि 1 2s है, 2p है hybridized to form a sp2 hybrid orbital. In 3 hybrid orbitals so formed are oriented in the trigonal planar arrangement and overlap with the 2p orbital of chlorine form 3 Bcl bond. Therefore, in the Bcl3 the geometry is trigonal planar with a Cl Bcl bond angle of 120 डिग्री। अब हम बात करते हैं sp2 के बारे में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया Bcl3 मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका जो सेंट्रल बोरॉन के एटम के साथ होता है वो 1s2 2s2 2p1 होता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपके जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपका 2s इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रमोट कर दिया जाता है 2p ऑर्बिटल्स के साथ। ठीक है, जो उसका रिजल्ट ये होता है कि उसके पास जो बोरॉन होता है उसके बाद 3 अनपेयर्ड के इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। उसके केस में ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें से एक तो 1 2s होता है और जो 2 है 2p होता है आपका, वो हाइब्रिडाइज करते हैं तभी वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। जहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बना रहे हैं वो ओरिएंटेड होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि अगर sp की मैं बात करती हूँ तो sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो वहाँ पे वो क्या बना रहा था, वो आपका लीनियर बना रहा था, 180 डिग्री बना रहा था। पर यहाँ पे जो होता है वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर बना रहा है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। एंड अरेंजमेंट एंड ओवरलैप विद 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल जो क्लोरीन की है वो ओवरलैप कर रही है Bcl बॉन्ड्स में, जो कि 3 जगह पे आपके बन रहे हैं, जिसे हम Bcl3 बोलते हैं। Therefore in Bcl3 the geometry is trigonal planar। इसी वजह से ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है और आपका जो एंगल बनाती है वो 120 डिग्री बनाती है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ, जो कि अभी हमने sp2 के बारे में पढ़ा, तो वो ट्राइगोनल आपका प्लेनर है और उसके साथ साथ वो आपका क्या बना रहा है, 120 डिग्री बना रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द डिस्कस विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। के sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसमें क्या देखने को मिलता है, फिर हम डिस्कस करेंगे उसके और एग्जांपल्स जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हैं। ना हियर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दिस टाइप ऑफ, अगर हम बात करते हैं ट्राइगोनल प्लेनर की, तो मैं वो भी वो आर्किटेक्चर में करके दिखाऊंगी। पर देखो यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे 3 Cl है, तो तीनों जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये बोरॉन भी है वो तीनों Cl से कनेक्टेड है। इस तरह से ट्राइगोनल आपका आर्किटेक्चर बनेगा जो कि आपका 120 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हम आप बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अगर हमें डिस्कस करना है तो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, जो कि आपको अमोनिया का है, इन विच देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल, जिसमें आपका एक s ऑर्बिटल होता है और 3 आपके p ऑर्बिटल्स होते हैं वैलेंस शेल के, जो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप्स फॉर्म करते हैं। देयर इज 25% s कैरेक्टर, यहाँ पे 25% आपका s कैरेक्टर होता है, 75% आपका जो होता है वो p कैरेक्टर होता है। ओके, एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे SP3 है तो S का आपका 25% हो गया और आपका P जो है 25 25 एंड 25, तो वो आपका ऑलरेडी 75 हो गया, इसीलिए बोला गया 25% जो है वो आपका S कैरेक्टर शो करता है और 75% जो है वो आपका P कैरेक्टर शो करता है। ओके, एंड द 4 sp3 hybrid orbitals so formed are directed towards the 4 corners of the tetrahedron। और जो ये आर्किटेक्चर बनाता है वो टेट्राहेड्रॉन बनाता है। अब हम sp3 की बात करते हैं अगर, तो sp3 में आप देख सकते हैं ये आपका टेट्राहेड्रॉन बनाता है
ओके और उसके साथ साथ जो ये एंगल फॉर्म कर रहा है वो आपका एंगल, अच्छा ये एंगल नहीं पड़ा, ओके द एंगल बिटवीन द sp3 हाइब्रिड आर 109.5। तो sp3 हाइब्रिड जो आपका एंगल बनाएगा वो आपका 109.5 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ों को समझना है। अब यहाँ पे आप आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है sp3 हाइब्रिड का, जो कि कॉम्बिनेशन है आपका s का, px का और py और pz का। तो ये आपका देख सकते हैं ये एक बना रहा है और एक ये बना रहा है, ये दोनों आपके एक्सेस के अलोंग बने हुए हैं, जिसमें आपका ये जो है और ये जो है ये आपका 109.5 बना रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था एस कैरेक्टर है तो ये 25% है, पी एक्स जो है वो 25% है, पी वाई जो है 25% है, पी जेड जो है वो भी 25% है। तो ये 75% हो गया आपका और ये आपका 25% हो गया। ओके अब बात करते हैं गो थ्रू करने की, जो कि हमने अभी तक की पढ़ा है उसमें लीनियर की बात करते हैं। जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है उसमें वो BCl2 में बना रहा है और एंगल कितना बना रहा है 180 डिग्री बना रहा है। उसका शेप क्या होता है फिगर का, वो आपका शेप होता है लीनियर। अब बात करते हैं SP2 हाइब्रिडाइजेशन की। SP2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो BCl3 में बनता है, उसका वो एंगल कितना बनाता है 120 डिग्री बनाता है और बन के से शेप रहा है डायगोनल प्लेनर बन रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो CH4 में बनेगा, मीथेन में बनेगा, जो कि आपका एंगल कौन सा बना रहा है 109.5 डिग्री बना रहा है। और उसका शेप की बात करते हैं तो वो टेट्राहेड्रॉन शेप बनता है। ये अभी तक की हमने यहाँ तक की डिस्कस किया। अब हम उसके और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो कि और किसी शेप में बन सकता है या और किसी मॉलिक्यूल्स में बन सकता है, जिसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ विल मूव ऑन विद नेक्स्ट दैट वी हैव हियर इज So the other examples of SP3, SP2, SP hybridization, as I said, you will discuss here with another examples of SP3, SP2, SP hybridization. So here we will discuss first SP3 hybridization in C2H6. तो SP3 hybridization की अगर हम बात करते हैं तो SP3 hybridization हमने CH4 में देखा था लास्ट, अभी जो भी डिस्कस किया हमने, बट SP3 hybridization C2H6 मॉलिक्यूल में किस तरह से होगा वो हम देखेंगे। इन इथेन मॉलिक्यूल, क्योंकि C2H6 को हम इथेन बोलते हैं, तो इथेन मॉलिक्यूल बोथ द कार्बन एटम अज्यूम sp3 हाइब्रिड स्टेट, दोनों ही कार्बन स्टेट जो है वो आपके आपके sp3 हाइब्रिड स्टेट को ही देखते हैं। वन ऑफ द फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम ओवरलैप एक्सियली विद द सिमिलर ऑर्बिट ऑफ द अदर एटम फॉर्म sp3 सिग्मा बॉन्ड। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि कोई अदर दूसरे फोर हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं कार्बन कार्बन में, जो कि ओवरलैप करते हैं एक्सियल के थ्रू, तो वो सिमिलर ऑर्बिट्स होते हैं, जो सिमिलर कार्बन एटम्स जो बनाते हैं sp3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वो अदर थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ही तरह होते हैं, जो एक कार्बन एटम को यूज करके sp3 s सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ। देयरफॉर इन द इथेन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बनाता है वो 154 pm लेंथ बनाता है, और जो CH बॉन्ड जो बनाता है वो आपका 109 pm बनाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं C2H4 की बात करती हूँ मैं अगर, तो C2H6 की सॉरी, तो यहाँ पे दो कार्बन देख रहे हो आप, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 आपके हाइड्रोजन हैं। अब कार्बन की बात करती हूँ तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड जो कि यहाँ पे बताया गया 154, तो ये 154 होता है, 154 pm होता है। और कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज योर 109 pm। तो ये हमारा जो है वो बॉन्ड लेंथ है, जो कि आपका कार्बन कार्बन के साथ 154 pm है और आपका कार्बन हाइड्रोजन के साथ 110 pm है, ये आपका बॉन्ड लेंथ है। अब बात करती हूँ आपके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के लिए, बट उससे पहले पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड देयर। We will discuss here the sp2 hybridization in C2H4 molecule। C2H4 molecule में आपका sp2 hybridization किस तरह से participate करता है और किस तरह से sp2 hybridization perform करता है C2H4 molecule में in the formation of ethene molecule, क्योंकि C2H4 को हम ethene भी बोलते हैं। तो ethene molecule जो है of one of the sp2 hybrid orbitals of carbon atom overlap axially and with sp2 hybridized orbital of the another carbon atom to form the carbon
कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन जो ये लोग बनाते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, while the other two sp3 hybrid orbital of each carbon atom are used for making sp2s sigma bond with the two other atom। बेसिकली अगर कार्बन कार्बन की बात करती हूँ तो कार्बन कार्बन जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो बाकी अदर जो आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो आपके कार्बन के साथ जो है वो sp2s सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं दो हाइड्रोजन के साथ। ओके तो जो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है वो आपका पैरेलली कोएक्सियली जो होता है अबव द एक्सिस और बिलो द एक्सिस, जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो कि C2H4 मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है आपकी 2px और 2py ऑफ एन कार्बन एटम ओवरलैप्स साइड वाइज ओवरलैप करते हैं विद द सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ द अदर कार्बन एटम टू फॉर्म द वीक पाई बॉन्ड। जब वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करने के बाद वो आपके वीक पाई बॉन्ड बनाते हैं, while which consist of two equal electron cloud are distributed above and the below the plane of the carbon and the hydrogen। कार्बन और हाइड्रोजन के above ये देख सकते हैं प्लेन के, ये प्लेन है, इसके above और ये इसके below जो है वो आपके प्लेन पे बनाते हैं। ये आपके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात की गई है जहाँ पे 2px और 2py के कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा हाइड्रोजन आर्किटेक्चर जो वीक पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं सिमिलर ऑर्बिट्स में with the carbon carbon to form a weak pi bond here। Now moving on with the next one that we have here is thus in ethene molecule की बात करते हैं। The carbon carbon bond consists of sp2 sigma bond of 1 pi bond between the p orbital which are not used in the hybridization and are perpendicular to the plane of molecule of the bond length 134 pm। तो इसी वजह से जो इथीन मॉलिक्यूल होते हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं sp2 सिग्मा बॉन्ड को, और जिसमें एक पाई बॉन्ड आपका रहता है जो कि p ऑर्बिटल में होता है, जो कि यूज़ किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और वो परपेंडिकुलर होता है एक प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल के जहाँ पे बॉन्ड लेंथ हमारा 134 pm है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करती हूँ C2H2 के बारे में, तो C2H2 जो है वो डबल बॉन्डेड एटम होता है जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ करता है, बट हम यहाँ पे इथीन की बात करें ना कि इथाइन की, तो इस वजह से हम देखेंगे यहाँ पे C2 आपके H4, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये चारों तरफ हाइड्रोजन है। कार्बन और कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन कार्बन में जैसे कि आप जानते हैं अभी यहाँ पे देखेंगे द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज sp2s सिग्मा बॉन्ड विद बॉन्ड लेंथ ऑफ 108 pm। तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन के 108 pm बॉन्ड लेंथ है। द हाइड्रोजन CH एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल ऑफ 117। तो हाइड्रोजन CH और ये आपका जो एंगल होता है वो 117 डिग्री सेल्सियस है, विच HFC एंगल ऑफ 121। HFC जो आपका है वो आपका 121 एंगल होगा, जो कि हम यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा पाई बॉन्ड ऑफ एथीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 108 134 pm आपका फॉर्मेशन बन रहा है C2H4 में। So this is the architecture you can see here. This is the formation of sigma and the pi bond of ethene that we have to discuss here, as this is the architecture। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, ये दोनों ने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। कार्बन ने जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया वहाँ पे भी ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है जो कि 1s है, आपका यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी 1s ये भी हाइड्रोजन एटम है। इसके साथ भी देखेंगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। सो sp3 जो है वो आपका इथीन में पाया जाता है, सॉरी sp3 इथेन में पाया जाता है, sp2 जो है आपका इथीन में पाया जाता है, और sp जो होता है आपका इथाइन में पाया जाता है। ये फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है जो कि इथीन में पाया जाता है। अब नाउ विल डिस्कस द sp हाइब्रिडाइजेशन इन C2H2। C2H2 में क्या sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है C2H2 में। इन द फॉर्मेशन ऑफ द इथीन मॉलिक्यूल, जब फॉर्मेशन आपका इथीन मॉलिक्यूल का होता है, बोथ द कार्बन एटम अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन हैविंग द टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिनके पास sp हाइब्रिडाइजेशन में ही दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, जैसा कि है आपका पहला 2py और 2px। 2py और 2px जो है वो आपके sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं C2H2 मॉलिक्यूल में, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड आपके ऑर्बिटल्स हैं 2py and 2px। Now moving on with the next one, we related to the sp hybridization in the C2H2 where we are dealing with the figures as well. I will be explaining here only। तो दो C2H2 है तो दो कार्बन हो गए और दो आपके हाइड्रोजन हो गए, पर कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो आपके लास्ट की 4 होती है, तो एक हो गया, दो हो गया, तो 3 यहाँ पे आएगा, चौथा भी यहाँ पे आएगा। दो विल बी शेयरिंग ट्रिपल बॉन्ड से ये आपका शेयर कर रहे हैं, सॉरी कार्बन टू कार्बन शेयर कर रहे हैं, जिससे इनकी वैलेंसी हो गई 1 2 3 4 एंड 1
2 3 4। तो इस तरह से वो शेयर करेंगे, तो कुछ इस तरह से आपका ये बनेगा। ओके, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा आर्किटेक्चर बनेगा। एंड दिस इज C2H2 के बारे में बना है, जो कि आपका sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज होता है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज on the sp hybrid orbital of the carbon atom overlaps axially of sp hybrid orbital of the other carbon atom to form the carbon-carbon sigma bond, which of the other side of hybridized orbit of the each carbon atom overlap axially with the half-filled s orbital of the hydrogen atom. Formally, they are forming the sigma bond. Sigma bond normally बनाते हैं कार्बन कार्बन जो sigma bond बना रहे हैं, हर एक कार्बन जो है वो ओवरलैप करेगा एक्सियली हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल के साथ। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हाफ फिल्ड ही के साथ हमेशा हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बनाया जाए, वो फुलफिल्ड जो आपका होता है वो उसके साथ भी बना सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी इसी लेक्चर में पहले बताया था। Each of the two of the hybridized p orbital of the both the carbon atom overlaps sidewise to form a pi bond between the carbon atom, so that the triple bond between the two carbon atoms is made up of the sigma and the 2 pi bond. तो बेसिकली अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करती हूँ, तो जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन कार्बन, उसमें से एक आपका सिग्मा बॉन्ड है और दो आपका जो है वो पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और अभी ये लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो भी मैं वो बताऊंगी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करोगे, किस तरह से समझोगे कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड आपका वीक होता है कि पाई बॉन्ड वीक होता है, तो उस तरह से आप समझोगे। बट एक शॉर्ट स्टडी में बता दूंगी। उससे पहले मैं आर्किटेक्चर दिखती हूँ। आर्किटेक्चर देखो, यहाँ पे आपका दो कार्बन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है C2H2, जैसा सेड यू। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और ये भी सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। ओके, दिस इज द sp हाइब्रिड। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये आपका ये 2py है, ये पूरा 2py है और ये आपका जो है 2px है। ओके, तो ये भी आपका जो है वो 2px है और ये आपका 2py है। तो जो 2px है वो 2px के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। ओके, तो ये जो 2py है 2py के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे भी सेम है, आपका 2px के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है और 2py के साथ आपका पाई बॉन्ड बना रहा है। ये आपका फॉर्मेशन है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, जो कि इथीन मॉलिक्यूल में है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर भी बना हुआ है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग द डी ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग द डी ऑर्बिटल में, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, जिसमें से पहले आप देख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो इथेन में देखा जाता है, sp2 जो है वो इथीन में देखा जाता है और sp जो है वो इथाइन में देखा जाता है। अब डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, एंड स्पेशली हम डिफरेंस से पहले हम ये देखेंगे कि हमारा वी बॉन्ड कौन सा होता है और सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड होता है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि बिकॉज इसमें ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो सिग्मा बॉन्ड से आप याद रखो, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होता है एज सच, कैसे स्ट्रांग होता है? एज अ बेस्ट फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास बेस्ट फ्रेंड्स होता है तो हमारा जो बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और एज वेल एज हम लड़ते झगड़ते नहीं है या फिर हमारी फ्रेंडशिप नहीं टूटती है। तो एक स्ट्रांग बेस्ट फ्रेंड्स की तरह होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। वेयर एज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पाई बॉन्ड, सो पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड एंड दिस इज अ वीक बॉन्ड। एंड सिग्मा बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन आपका ये होता है, पाई बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। Talking about the hybridization of elements involving the d orbital here, the elements present in the third period contain d orbital in addition to the sp orbital. जो element present है आपके third period में वो आपके contain करते हैं d orbital को, जो कि addition आपका s और p orbital का। The energy of the 3d orbital, जो energy है 3d orbital की, वो comparable आपकी दूसरी energies जैसे कि 3s orbital 3p orbital के comparison में रहती है। तो 3d orbital में जाती है as compared to the 3s और 3p orbital in when we are talking about the hybridization of element involving the orbits. Now moving on with the next, that we will discuss here about the table that we have to discuss, and with reference to that you will be understood about the square planar and of course square planar, trigonal plane, bipyramidal and square pyramidal and octahedral, and then we will discuss about the formation of Bcl5, SP3 hybridization and of course SP3 dehybridization, and the second the formation of SF6 SP3D2 hybridization that we already discussed here. Thank you. And I'm moving on with the next one that we have here is
So with reference to the hybridization of element involving the orbitals here, and with reference to that, as I said you that s orbital or p orbital का भी combination होता है, as well as they having a d orbital also. The energy of 3d orbital are also comparable to those of 4s and 4p orbital, and as a consequences of the hybridization involving either 3s 3p and 3d and or 3d 4s or 4p orbital is possible. तो इन द केस ऑफ द एनर्जी अगर हम 3 ऑर्बिटल की बात करते हैं 3d ऑर्बिटल की, तो कंपैरेबल आपका 4s भी होता है 4p ऑर्बिटल भी होता है. अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 3s 3p और 3d में भी हो सकता है और 3d 4s और 4p में भी हो सकता है, दोनों में ही पॉसिबल है. तो इट कुड बी 3s 3p एंड 3d and 3d 4s and 4p is also possible here. However, since the difference in the energies of 3p and the difference in the energies is 3p and the 4s orbital in the significant, no hybridization involving the 3p 3d and 4s orbital is so possible. तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंस एनर्जीज की, तो 3p और 4s ऑर्बिटल में भी सिग्निफिकेंट है, और जहाँ की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन जो इन्वॉल्व करता है तो 3p 3d और 4s ऑर्बिटल में भी पॉसिबल है. So here is a table that I had formed you about, that you can get to know all about in that one table. You can also form this table and you can also learn all these things in a very simultaneous and an easy way as well. तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल और आयन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल और आयन यहाँ पे दिए हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एज वेल एज द एग्जांपल्स दैट दे आर परफॉर्मिंग इन द पर्टिकुलर शेप ऑफ आयन और पर्टिकुलर hybridization type or particular atomic orbital they are following it. So now we'll start with the first shape of molecule, ion या shape of ion. वो आपका स्क्वायर प्लेनर जो बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन टाइप होता है DsP2 and atomic orbital what they are forming is D plus S plus P of 2. An example that is NiCH4, and of course this is whole 2 plus, and PtCl 4, that is 2 minus. So this is the examples of square planar that they are forming. Now coming to the trigonal bipyramidal, trigonal bipyramidal की बात करती हूँ तो हाइब्रिडाइजेशन टाइप जो है वो sp3d. सो अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिड की बात करती हूँ तो आपका जो टाइप होगा हाइब्रिडाइजेशन टाइप वो sp3d होगा, और अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो s प्लस p ऑफ 3 एंड प्लस d, एंड अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो आपका pf5 और pcl5 होगा ट्राइगोनल प्लेनर के लिए. नाउ वी टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर पिरामिडल. स्क्वायर पिरामिडल की बात करती हूँ तो देन वी हैव एन हाइब्रिडाइजेशन टाइप दैट इज sp3d2 and atomic orbital that is s plus p of 3 d of 2. An example is brf5 here. Now we're talking about the shape of molecule or shape of ion, that we have an octahedral. So octahedral, we have an octahedral, the hybridization type we have sp3d2. So in octahedral, if I'm talking about, that is your hybridization type sp3d2 and d2sp3 होगा. और अगर हम बात करते हैं atomic orbital की, तो that is s plus p of 3 plus d of 2 plus d of 2 plus s plus p of 3. Examples बात करती हूँ तो sf6 or crf6 3 minus 3 plus, and then we have a CONH3 6 whole 3 minus. ये आपके एग्जांपल्स हैं ऑक्टाहेड्रल के. दे आर फॉर्मिंग द ऑक्टाहेड्रल शेप. स्क्वायर प्लेनर जो है वो है आपका ये बनाते हैं, ट्राइगोनल जो है वो ये बनाते हैं, स्क्वायर पिरामिडल ये बनाते हैं, और ऑक्टाहेड्रल जो है वो आपके ये बनाते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ PCl5, क्या फॉर्मेशन है आपका. So here the formation of PCl5 is sp3d hybridization. So formation of PCl5, it forms an sp3d hybridization. The ground state and the excited state outer electron configuration of phosphorus, that is Z equals to 15, are represented below here. They are forming the formation of a PCl5 sp3d hybridization, where the ground state and the excited state outer electronic configuration of phosphorus, that is Z is equals to 15, are represented. That we had represented here is, here you can see the representation of trigonal bipyramidal of a geometry of PCl5 molecule.
trigonal bipyramidal geometrical of PCl5 is, you can see that P here and that is here, it is 5 Cl, and they are bonded to one another in this way, in the statically way, and that of course with each Cl is connected, is bonded with a phosphorus atom, and that all are combining and bonded with one on another. So this is the trigonal bipyramidical geometry of the PCl5. Here P ग्राउंड स्टेट में अगर है तो आपके 3s में 2 है और 2p में 1 1 1 है, 3p में 1 1 1 है, 3d में नहीं है. बट व्हेन इट इज फॉस्फोरस, व्हेन इट इज इन एक्साइटेड स्टेट, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 थे, बट ये सीधे 3d में एक्साइटेड स्टेट में 3d में चला गया, एक 1 1 सिंगल सिंगल, और यहाँ का जो एक 1 था वो आपका 3d में चला गया जब वो एक्साइटेड स्टेट में था. अब बात करते हैं PCl5 की. तो PCl5 का अगर हम चेक करते हैं तो दैट इज 2 in 3s and of course 6 in 3p and 2 in 3d. सो यहाँ पे ये 5 एक एक जो ये तो P का आपका देख ही रहे हो 1 1 1 1 1 1 सिंगल सिंगल था यहाँ पे, और ये जो अलग से ये एक एक आए हैं वो आपके Cl हैं जो कि Cl5 है. तो Cl5 आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5. तो ये आपका PCl5 का. दिस इज द SP3d hybrid orbitals filled by the electron pair that is denoted by the 5Cl atom here. The 5 orbitals, that is 1s 3p and 1d orbitals. तो यहाँ पे 1 एक s है, 3p है, 1s है, 3p है, 1d है, तो 3 plus 1 4 plus 1 5. तो यहाँ पे 5 आपके जो orbitals है that are available for the hybridization of yield a set of 5 sp3 hybrid orbitals. sp3 hybrid orbitals हैं which one directed towards the 5 corners of the trigonal bipyramidical आपका shapes हैं जो कि आपके अलग अलग directions में है, जैसा कि मैंने आपको show किया हुआ है PCl5 molecule का structure. Now moving on with the next one that we have here with reference to this only. So all the bond angle is trigonal bipyramidal. Basically जो हमारे हर एक bond angles हैं वो trigonal bipyramidical geometry है, and that are not equivalent. In PCl5 the 5 sp3 orbitals of phosphorus overlap with a singly occupied p orbital of chlorine atom and to form 5 PCl sigma bond. अगर हम बात करते हैं हर एक बॉन्ड एंगल की, तो जो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री बना भी रहे हैं वो इक्विवेलेंट नहीं भी होते हैं. बट अगर हम PCl5 की बात करते हैं तो यहाँ पे sp3 आपका ऑर्बिटल है जो कि फॉस्फोरस का है, जो ओवरलैप कर रहा है सिंगली ऑक्यूपाइड p ऑर्बिटल के साथ क्लोरीन एटम के, और फॉर्म भी कर रहा है PCl सिग्मा बॉन्ड वहाँ पे. जिसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 3 PCl bond lie in one plane and make an angle of 120 degree with each other. Their bonds are termed as equatorial bonds. अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पे 3 PCLs जो बॉन्ड हैं वो आपके एक प्लेन में ही लाई करेंगे, ठीक है. तो एक ही प्लेन में लाई करने के बाद वो एक 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं. 120 डिग्री एंगल एक दूसरे के साथ बनाते हैं, और ये बॉन्ड जो है उन्हीं को हम आपका इक्वेटोरियल bonds कहते हैं. Okay, now moving on with the next one that we have with reference to the PCl5 only, that of the 5 orbitals that we had discussed here. The remaining 2 PCl bond on lying above and other lying below the equatorial plane make an angle of 90 degree. जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक आपका below the plane बनता है और एक आपका above the plane बनता है. तो वो आपके जो बनते हैं ये आपका 90 डिग्री फॉर्मेशन बनाते हैं एंगल का एक ही प्लेन के अंदर. These bonds are called axial bonds. इन्हीं bonds को जो आपके 90 डिग्री फॉर्मेशन बनाते हैं इन्हीं को हम axial bonds बोलते हैं. Okay, as the axial bond pairs suffer more repulsive interaction from the equatorial bonds pair, their axial bonds have been found to be slightly longer and hence slightly weaker than that of the equatorial bond, which makes PCl5 molecule more reactive. अगर हम remaining 2 PCl bonds की बात करते हैं तो एक जो लाई करता है आपका और एक दूसरा लाई करता है आपका below the equatorial plane, वहाँ पे आप वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं प्लेन के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे. तो वो सारे जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हीं को हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं. जो ये एक्सियल बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो सफ़र बहुत करते हैं, आपका मोर रिपल्सिव इंट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा उनका रिपल्सिव इंट्रैक्शन होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स के साथ. इसी वजह से जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो आपके स्लाइटली लॉन्गर होते हैं और स्लाइटली थोड़ा वीकर भी होते हैं. लॉन्गर के साथ साथ वीकर भी होते हैं बिकॉज दे आर द रिपल्सिव, दे आर मोर रिपल्सिव इंट्रैक्शन दे हैव, and then the equatorial bond, and this which makes the PCl5 molecule more reactive
रिएक्टिव एज वेल। इसी वजह से वो मोर रिएक्टिव उस मॉलिक्यूल को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पास एक्सियल बॉन्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा ही रिपल्सिव इंटरेक्शन, मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन उनके पास होता है। उसके साथ साथ उनका जो स्लाइटली लॉन्गर भी होता है और एज वेल एज स्लाइटली वीकर भी होता है इक्विलेटोरियल बॉन्ड्स के कंपेयर में। इसी वजह से जो PCl5 है वो आपका मोर रिएक्टिव भी होता है। नाउ वी आर कंक्लूड नेक्स्ट दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ SP5 SF6 फॉर्मेशन ऑफ SF6 बॉन्ड का, जो कि SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि SP वाले 1 की बात करी थी मैंने। अब SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, जो कि आपका फॉर्मेशन होगा SF6 मॉलिक्यूल में। In the SF6, the central sulfur atom has a ground state outer electronic configuration of 3s2 3p4। अब हम SF6 की मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं तो उसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो सल्फर एटम होता है। उसका ग्राउंड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका 3s2 3p4 है। ओके, 3s2 3p4 of the sulfur electronic configuration of the ground state. Now moving on with the next that we have here is, सो विद रेफरेंस टू इन द एक्साइटेड स्टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया सल्फर का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन द एक्साइटेड स्टेट द वुलेबल 6 ऑर्बिटल्स दैट इज 1s 3p and 2d orbitals are singly occupied by the electron। तो इसमें 1s होता है, 3p होता है और 2d होता है। ये ऑर्बिटल आपके ऑक्युपाइड है इलेक्ट्रॉन के। Thus orbital hybridized to form a 6 new SP3D2 hybrid orbitals which are projected towards the 6 corners of the regular octahedral in the SF6 molecule. These are the SP3D2 hybrid orbitals overlap with a singly occupied orbital of fluorine atom to form a 6 SF sigma bond। तो here in the case यहाँ पे SP3D2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं जो कि ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से। वो सिंगली ऑक्यूपाइड करते हैं ऑर्बिटल जो कि फ्लोरीन एटम का ही है, और वो आपके साथ SF6 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। ओके, दे आर फॉर्मिंग द SF6 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे आपका एक S 3p और 2d ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स का होता है। Now we consider thus SF6 molecule has a regular octahedral geometry। इसी वजह से जो SF6 होता है मॉलिक्यूल, उसका आपका रेगुलर octahedral geometry होता है। octahedral geometry की बात करते हैं तो we will see the ground state as well as excited state of this SP3D2 hybridization here। एस अगर बात करती हूँ सल्फर की, तो सल्फर की ग्राउंड स्टेट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 3s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में आपके 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं और 3d में कुछ भी नहीं है, 0 है। उसके बाद बात करते हैं अगर सल्फर आपका एक्साइटेड स्टेट में है तो आपका 3s में 1 आ गया, यहाँ का ओवरलैप करके वो बाहर चला दूसरी 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा। एक यहाँ से यहाँ 3d ऑर्बिटल में गया, एक यहाँ से यहाँ 3d ऑर्बिटल में गया। अब 3s में 1 रहा और 3p में 1 2 3 रहा, और फिर उसके बाद 3d में आपका 2 आ गया, जो कि मैंने आपको बता दिया एक्साइटेड स्टेट में होने के बाद वो वहाँ से वहाँ पहुँच गया। अब बात करते हैं हम SF6 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पे था, 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 एक यहाँ पे था। अब ये जो बाकी के जो आपके एंटी उसमें दिख रहे हैं वो आपके फ्लोरीन है। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन है, 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 यहाँ पे एक फ्लोरीन है। तो ये SF6 है आपका, यहाँ पे सारे फ्लोरीन है। तो ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है SF6 के लिए हुआ। ओके, तो दिस इज जिसमें कि 3s में आपके 2 हैं और 3p में आपके 6 हैं, और आपके 3d में अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी 4 है आपके SF6 मॉलिक्यूल में। ओके, तो दिस इज द SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन दैट यू कैन सी हियर फ्रॉम दैट। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ SF6 मॉलिक्यूल। अब हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखेंगे आपका SF6 मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 आपके जो हैं फ्लोरीन है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं S जो है वो आपका फ्लोरीन से इससे भी बॉन्डेड है, आपका ये इससे भी बॉन्डेड है, ये आपका सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा, ये इससे भी बॉन्डेड है, ये इससे भी बॉन्डेड है, ये इससे भी बॉन्डेड है, और ये इससे भी बॉन्डेड है, और ये इससे भी बॉन्डेड है। उसके बाद ये फ्लोरीन भी जो है वो आपस में एक दूसरे से अपने बॉन्डेड है एक दूसरे से। उसके साथ ये फ्लोरीन आपस में भी एक दूसरे से अपने से बॉन्डेड है, ये इससे बॉन्डेड है, ये इससे बॉन्डेड है, ये इससे बॉन्डेड है। सो दे आर फॉर्मिंग ऑल इन टोटल दे आर फॉर्मिंग वन इन ईच अदर। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ SF6 मॉलिक्यूल हो गया।
Okay, so that all about the hybridization that I had told you. We'll start and we will end of this hybridization. तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करती हूँ हाइब्रिडाइजेशन की, इसी क्लास की 133 क्लास की बात करती हूँ, तो सबसे पहले मैंने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में बात किया. उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है दैट वी हैड डिस्कस. फिर साइलेंट फीचर्स हमने डिस्कस किए, साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कि 4 टाइप्स के थे, हमने उसको डिस्कस किया. उसके साथ साथ हमने इंपॉर्टेंस कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया, जो कि 4 कंडीशंस थे. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया, जिसमें एसपी हाइब्रिडाइजेशन आपका है. एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने जब डिस्कस किया तो उसमें हमने देखा कि एक एस और एक पी ऑर्बिटल रिजल्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें हमने उसके एग्जांपल्स भी देखे. एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग द एसपी हाइब्रिडाइजेशन दैट इज Bcl2 दैट वी हैज डिस्कस्ड हियर. एंड उसके बाद हमने उसका आर्किटेक्चर भी देखा, आर्किटेक्चर मॉलिक्यूल देखा कि किस तरह से वो फॉर्म कर रहे हैं, हमने वो सारी चीज़ें देखी. उसके बाद हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखा. Bcl2 अगर हमने sp की बात करें तो हमने sp में ये चीज़ देखी कि sp में लीनियर बन रहा है, आपका 180 डिग्री फॉर्मेशन बना रहा है, आपका Bcl2 में बना रहा है. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी. उसका एंगल जो बना रहा था 180 डिग्री बना रहा था. फिर हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक किया तो हमने देखा कि वो Bcl3 मॉलिक्यूल्स में बना रहा है, और उसके बाद जब वो फॉर्मेशन करता है तो उसका एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री सेल्सियस बनता है. उसका टेट्रा ट्रायगोनल प्लेनर बनता है उसका आर्किटेक्चर. तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी. उसके बाद फिर हमने sp3 की बात करते हैं अगर, तो हमने sp3 चेक किया. तो sp3 में हमने जब चेक किया तो sp3 में भी दूसरा केस था कि 109 डिग्री फॉर्म बना रहा है, CH4 बना रहा है, ठीक है. और आपका जो sp2 है वो 120 डिग्री बना रहा है, Bcl3 में बना रहा है. फिर हमने उसके अदर एग्जांपल्स देखे sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन की. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में C2H6 मॉलिक्यूल के साथ हमने डील किया, उसको देखा कि किस तरह से वो C2H6 जो है वो फॉर्मेशन बना रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड पे बना रहा है, ओके, जब कंबाइन होता है. फिर उसके बाद sp2 की हाइब्रिडाइजेशन की बात की तो C2H4 मॉलिक्यूल के बारे में चेक किया. तो C2H4 मॉलिक्यूल में हमने देखा कि डबल बॉन्डेड फॉर्म करा रहा है, और प्लेनर आपका है, एक बिलो द एक्सियल है और एक आपका अबव द एक्सियल है, और हाइड्रोजन एटम अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 2px और 2py का फॉर्मेशन हो रहा है. उसके साथ साथ फिर हमने जो चेक किया तो फिर हमने देखा फॉर्मेशन जो हमने बनाया सिग्मा और पाई बॉन्ड का, जो इथीन के साथ बन रहा था वो हमने देखा, उसको बनाया. उसमें भी हमने चीज़ें देखी कि C2H जो 4 है उसमें किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है. उसके बाद हमने sp हाइब्रिडाइजेशन C2H6 में देखा. तो sp हाइब्रिडाइजेशन C2H2 में देखा. C2H2 में हमने देखा कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन. उसके बाद उसमें हमने चेक किया तो फिर उसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों सारी चीज़ों के देखा हमने, सारी चीज़ों के किस तरह से वो इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑर्बिटल्स में. उसके बाद फिर हमने एक टेबल डिस्कस किया. टेबल में हमने शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आयन, हाइब्रिडाइजेशन टाइप, एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जांपल्स उसके दिखे थे. तो जिसमें हमने शेप ऑफ चेक किए जो कि स्क्वायर प्लानर, ट्राइगोनल, बायपिरामिडिकल, स्क्वायर पिरामिडिकल और ऑक्टाहेड्रल, ये सारे शेप्स चेक किए. उसके बाद उसमें हमने देखा कि कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स थे. तो वो आपका DSP2 SP3D और SP3D2 और SP3D2 SP3 आप कह सकते हैं. तो वो हमने चेक किया, उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड टू एग्जाम्पल्स देखे. उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ PCl5 किया कि किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है PCl5 का sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ. फिर हमने PCl5 का जो आर्किटेक्चर है उसको चेक किया, जिसमें हमने देखा था कि जो Cl जो 5Cl हैं वो P को बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ. उसके बाद हमने उनकी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट चेक की जो कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन की थी. उसके बाद हमने सेकेंड फॉर्मेशन अब चेक किया जो कि हमारा आपका SF6 के लिए था, जो कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था. जो कि आपका SF6 की बात करते हैं तो वो SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन हमने उसके बारे में डिस्कस किया कि ग्राउंड स्टेट पे क्या था, एक्साइटेड स्टेट में क्या था, और SF6 मॉलिक्यूल के लिए किस तरह से वो फॉर्मेशन कर रहा है. फिर हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ SF6 मॉलिक्यूल को डिस्कस किया. ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा कि सल्फर के साथ आपके 6 फ्लोरीन एटम बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ, उस तरह से वो फॉर्म कर रहे हैं. वो सारी चीज़ें हमने देखी. तो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ thumbs up and give a suggestion on the comment box. If you like our channel, please like, share and subscribe our channel and share our videos. And thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Please like, share and subscribe our channel. This is a request from my side. And thanks for all those subscribers, those who had subscribed our channel, because we had arrived here as 1K subscribers. And thanks for those who had subscribed our channel, because आपके बिना नहीं possible था ये. And we want more support that हम millions तक पहुँचे, and बिना आपके नहीं पहुँच सकते. That's a request. Thank you.